So we'll be starting with the types of reaction, and when I say types of reactions, so organic chemistry has a very well defined types of reactions. In this sense, यदि हम overall बात करें इस पूरे टॉपिक के अंदर, so types of reactions में जो reactions हमारे सामने आएंगे वो कुछ ऐसा होगा, types of reaction, and we would be covering the entire organic reactions in this only. So types of reactions की जो चर्चा करते हैं इसके अंदर ही सारा सारा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर अप होता है. एंड सो लेट अस हैव अ लुक एट दीज कि कैसे हम लोग इसको कवर अप करते हैं. सो नंबर 1 सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, वी कैन टॉक अबाउट दैट एडिशन रिएक्शन करें यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन है. एडिशन जैसे नाम है वैसे ही काम भी वैसे ही होता है. सो दिस एडिशन इज देयर. सो द मोमेंट आई से एडिशन देन आई टेक सब्स्टिट्यूशन. सो इट इज सब्स्टिट्यूशन. Then we have elimination. Then we have oxidation reduction, oxidation and reduction. So broadly, and we can say to some extent हम लोग यहाँ पर rearrangement भी हम लोग ले सकते हैं. यहाँ पर rearrangement, though rearrangement is not part of this actual reaction because actual reaction कुछ और होता है, तो लेकिन overall effectively we can say oxidation reduction and rearrangement हम लोग यहाँ पर effectively ले सकते हैं. So the moment I say addition reaction, so broadly और जो हमारे लिए important होता है वो addition में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग electrophilic addition की बात करेंगे. Electrophilic addition. Then we have nucleophilic addition, electrophilic addition. Then we have nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction, addition. Then we have electrophilic हो गया, nucleophilic हो गया, and we have free radical addition, free radical addition reaction, free radical addition reaction. When I say substitution, so in this case obviously further we have this one again. starting करेंगे तो ऐसे ही electrophilic substitution होता है. electrophilic को हम लोग लिखते हैं electrophilic, the moment I say electrophilic, or this is called electrophilic, electrophilic substitution. इसमें जो important है वो aromatic substitution ज्यादा important है, EAS कहते हैं इसको. दूसरा है हमारा nucleophilic substitution, nucleophilic substitution. So when I say nucleophilic substitution, so here in this case we have got these, SN1 आता है, SN2 आता है, then we have SNAR, SNAR. SNAR is further classified into SNAE, SNAE and SNEA. Then we have SNI, SN dash, and we do have SNI. SNI और SN dash दोनों में थोड़ा सा अंतर है. And then we have one more that is called SNNGP, SNNGP. ये NGP आजकल एडवांस में बहुत ही पॉपुलर है और काफी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में. Then we have the next one is, यहाँ से इसके बाद हमारे पास आता है free radical substitution, free radical substitution reaction, free radical substitution reaction है. Elimination is again we have this one again very much simpler, यानी E1 है, then we have E2 है, then we have E1CB, E1CB conjugate base, then it is EI, EI elimination intramolecular. ये वाले हमारे पास elimination reactions हैं. Oxidation reduction and rearrangement आज हमने already mention कर ही रखा है यहाँ पर, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है. And this is oxidation reduction or rearrangement is observed everywhere, हर जगह पे हमें ये दिखाई देता है. And so we have to be a bit you can say related to all these. इसके साथ हमें थोड़ा सा relate करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. And so first of all, चूंकि ये सारा का सारा oxidation reduction and rearrangement सारा इकट्ठा ही है, so I prefer to start with these oxidation reduction and rearrangement से हम लोग start करेंगे, ठीक है, so that कि it is जहाँ कहीं भी फिर आएगा तो हमें फिर उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक. So we'll be starting with oxidation reduction and rearrangement से हम लोग start करते हैं. And so here it is,
Let us begin with this oxidation, reduction and rearrangement. So oxidation, reduction and rearrangement. सबसे पहले मैं अगेन फिर से बात करूंगा, रीअरेंजमेंट थोड़ा सा इंडिविजुअल टाइप का रिएक्शन है, सबसे अलग है, तो इसलिए पहले हम लोग रीअरेंजमेंट के बारे में ही क्विकली बात कर लेते हैं और इसी में हम लोग काफी कुछ सीखेंगे। और हमारा जो अप्रोच होगा वो टोटली मैकेनिज्म के बेस्ड होगा एंड सो विल बी लुकिंग एट दैट। फर्स्ट हम लोग रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। सो फर्स्ट वन इज रीअरेंजमेंट। rearrangement reactions. So when I say rearrangement reactions, तो कुछ important reactions हैं, that is what we just need to take. Like number one, पहला इसमें जब हम बात करेंगे, पहला है हमारा A कार्बोकेटाइन rearrangement, कार्बोकेटाइन और rearrangement in कार्बोकेटाइन. Then second is, जो second है हमारा, that would be हम लोग I will be taking this Beckmann rearrangement, Beckmann rearrangement, Beckmann rearrangement. Then cumene hydroperoxide rearrangement, cumene hydroperoxide. Then we have other rearrangements as well, others, so that I will take up. Others में से क्लेजन आता है, फिर फ्राइज आता है, so all that we will take up there only. So first हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर A कार्बोकेटाइन से, यानी कार्बोकेटाइन की बात करेंगे. So rearrangement in कार्बोकेटाइन. So the moment I say carbocation, I hope just please hold your breath because now we are just going to do this and this is quite easy और बहुत ही simple सा है और बहुत ही आसानी से हम इन चीजों को कर लेंगे और जैसे हम लोग इसको कर लेने से यूं समझिए आप इससे हमारे बहुत कुछ इससे सॉल्व हो जाएगा, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी डिसॉल्व हो जाएंगी. And so we'll be looking at this because this you can imagine कि alkene, alkyne, alkyl halide, alcohol तक पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो कार्बोकेटाइन पर ही बेस्ड है. So once you know the carbocation, then things are very easy for us. So with the moment I say carbocation, so as I hope you recall कि carbocation is basically what? Carbocation features यदि हम बात करते हैं, so this is in fact ये carbocation है हमारे पास, ये इस तरह से हम लोग इसको present करते हैं. Now this one is there and so the quickly यदि मैं features की बात करूं तो 6 electron system है, 6 electron, electrophile है, diamagnetic है, then we can say sp2 hybridized है, planar है, पोलर सॉल्वेंट चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए, फिर उसके बाद ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज. एंड सो दिस इज हाउ, दिस इज सम बेसिक फीचर्स आर देयर. सिमिलरली वी कैन से स्टेबलाइज्ड बाय, किससे स्टेबलाइज किससे होगा? स्टेबलाइज्ड बाय प्लस m प्लस h प्लस i, इन सबसे स्टेबलाइज होता है. Then we can see here कि कैसे ये generate कैसे होगा. So how can we generate this carbocation? So methods of generation. First we'll talk about this methods of generation. Methods of generation. This is quite easy. बहुत ही simple सा है. Just एक logic हमें ध्यान रखना है कि electron rich कौन सा है और electron deficient कौन है. जो electron rich होगा वो electron देता है और जो electron deficient होगा वो electron accept करेगा. So starting with this, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं इसमें first is from alkene. एल्कीन ले लिया हमने यहाँ पर. अब जैसे हमने एल्कीन ले लिया तो एल्कीन इज जस्ट चेंजिंग टू व्हाट? एल्कीन ले लिया हमने यहाँ पर एंड सो वी कैन से दिस इज देयर, जस्ट ऐड H प्लस टू दिस वन, सो वी कैन से दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. सो व्हाट विल हैपन? दिस वुड बी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू H प्लस, सो इट विल बी मेकिंग अप व्हाट? यहाँ से ये वाला ऐसे ये प्लस बन गया, एक केटाइन ये बना, दूसरा केटाइन कौन सा बनेगा? ये वाला. एंड आउट ऑफ दीज टू व्हिच वन इज मोर स्टेबल? So this one is more stable and so this is major. ये वाला हमारा major है. This is more stable because it has how many alpha hydrogen? 9 alpha hydrogen. Tertiary है तो ये ज़्यादा stable होगा. It has only 1 alpha hydrogen, so this is less stable. So this is minor. ये minor हो गया. Similarly, instead of this, suppose I would have taken this one. यदि मैंने ये ले रखा होता तो इसमें फिर से क्या बन जाएगा? यहाँ पर 1 is this. एक हमारे पास ये वाला बना
और दूसरा क्या बन जाएगा प्लस, एक हमारे पास ये वाला बन जाएगा लाइक दिस वन, यहाँ से ये वाला बना। अगेन वी कैन से मेजर कौन सा माइनर कौन सा है इसमें, which one is major and which one is minor? फर्स्ट वाला माइनर। हाँ ये वाला मेजर है और ये वाला माइनर बन जाएगा। ठीक है, अगेन इसमें स्टूडियो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस भी इन्वोक किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। एंड सो हियर आई नीड टू मेंशन वन मोर थिंग, क्योंकि हमारे पास ये कैसा है, ये प्लेनर है, सो अ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैच, यानी इस पे जो नेक्स्ट रिएक्टेंट का जो अटैक हो सकता है वो अप साइड टॉप साइड से हो सकता है और बॉटम साइड से हो सकता है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक, इसको में ध्यान रखना होगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, इसमें मैं यहाँ पे जस्ट मेंशन कर ही देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक of nucleophile from the top or bottom is almost same। इसके समझ में आएगा, जब हम लोग SN पढ़ेंगे तब ठीक से समझ में आएगा ऑलमोस्ट सेम, कि हमने यहाँ पे ये ऑलमोस्ट वर्ड क्यों यूज किया है, that we'll see to it। So we have got this one instead of this। इसमें सपोज जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये ले लिया, देखना बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिया यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड ले लिया यहाँ पर। नाउ दिस इज व्हाट, इसमें क्या हो गया यहाँ से, सो वी हैव गॉट व्हाट, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा ये वाला हमने लिया, एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और ये डबल बॉन्ड है। नाउ दिस कैन रेजोनेट, सो देयर इज रेजोनेंस हुआ यहाँ पर, तो ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया। तो दोनों ही हमारे पास ये बन सकते हैं इसके अंदर, बट इफेक्टिवली जब हम चर्चा करें तो ये वाला क्या होगा, हमारे पास ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए पहले हमने यही वाला बनाया है। ठीक है, ये वाला हो गया। इंस्टीड ऑफ दिस सपोज इफ आई वुड हैव टेकन दिस वन, बच्चों ये बहुत ही ध्यान से सोचना समझना फिर बताना, ऐसे नहीं मतलब कुछ भी बोल देना है इसमें। इफ आई वुड हैव टेकन दिस वन, now adding H plus to this, so what will happen? Similarly if I would have taken this one, suppose मैंने इसमें ये ले लिया like सिंपल ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, हमारे पास है ये ट्रिपल बॉन्ड ले लिया हमने यहाँ पर, तो इसमें कहाँ पे चला जाएगा। सिमिलरली एक और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग सा है, मतलब ये बहुत ही यूनिक सा रिएक्शन है, अभी तक जेईई में नहीं पूछा गया है, सो दे मे आस्क, सो यू कैन जस्ट राइट इट 2020। ये तो खैर कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो कॉमनली आते ही हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी यूनिक क्वेश्चन है यहाँ के इसके लिए। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, सपोज इसमें हमने H प्लस ऐड किया, सो वेयर विल इट गो, कहाँ कहाँ जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट दीज, इन सब में हम लोग एक क्विकली रिव्यू करके देखें कि कहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, एंड सो जस्ट हैव अ लुक एट दीज, जस्ट ट्राई इट आउट। When you look at this one, so this H plus की पॉसिबिलिटीज दो हैं, एक तो हमारे पास हमने क्या कर दिया इसमें, एक तो मैंने यहाँ से उठाया पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड लिया और इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया, H को मैंने यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ से लिया और इसको हमने यहाँ पे जोड़ा, तो ये वाला मेरे पास आ गया कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। एंड जो सेकेंड वाला हमने यहाँ पे बना रखा है, सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग देयर, यहाँ पे हो क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने यहाँ पर ये लिया है, यहाँ पर ये 1 2 3 है, इसमें हमने H प्लस ऐड किया, सो इट इज गोइंग हियर एंड सो दिस इज मेकिंग अप डबल बॉन्ड, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे और ये प्लस चार्ज। ठीक, लुकिंग एट द अदर वन, जब दूसरे वाले की बात करते हैं, दूसरे वाले केस में क्या हो सकता था, यहाँ पर हमने सेकेंड वाला यूज किया है, यहाँ से जस्ट लिविंग सम स्पेस सो दैट आप इसका p ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें। तो ये मैं इसका यहाँ पे इसकी बात करें हम लोग, ये ट्रिपल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड है और ये H प्लस को इसने डोनेट कर दिया, एंड सो इट वुड बी फॉर्मिंग व्हाट, यहाँ से ये वाला ऐसे ये वाला बन गया हमारे पास, ये प्लस चार्ज आ गया। नाउ आउट ऑफ दीज टू, सो हैव अ लुक एट दीज, इन सब की बात करें, सो व्हाट इज द आइडिया एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग देयर। नंबर 1, ज्यादा एक्सपोज्ड कौन सा है यहाँ पर, इन दिस केस जब चेक करके देखें यहाँ पर, सो हियर वी कैन से कि ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। बट इफ यू ड्रॉ इट्स p ऑर्बिटल डायग्राम, तो कैसा दिखाई देगा, इसका p ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, सो इट वुड बी अपीयरिंग लाइक दिस वन, ये ऐसे है, इसका p ऑर्बिटल ये वाला हमने बना लिया, ये p ऑर्बिटल ऐसे बना लिया, एक p ऑर्बिटल इसका ऐसे वाला होगा और एक ये वाला हो गया,
इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है, और एक ये वाला होगा। एक हमने परपेंडिकुलर प्लेन में लेना है जो कि ये वाला है, ऐसे। ठीक, नाउ इसके बाद जब मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, सो द मोमेंट, अब देखो यार इसमें से डोनेट कौन, दोनों में से कौन सा डोनेट करेगा? जो हमने डोनेट करा है यहाँ पर कि ये जो ब्लू वाला हमने लिख रखा है या रेड वाला है, वो विच विल डोनेट इजीली। इफ आई मार्क इट लाइक दिस वन इज बी, ये बी है और ये ब्लू वाला हमारा ए था। डोनेट कौन सा करेगा? ए डोनेट करेगा, बी डोनेट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? और विच वन शुड डोनेट? ए को डोनेट करना चाहिए, ए को। यदि यहाँ पर क्या, ये चूंकि कॉन्जुगेशन में है, जो ब्लू वाला कलर वाला हमारे पास है, दिस इज इन कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन वाला जब जैसे ही कॉन्जुगेशन मतलब ये रेजोनेंस में होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ये, यानी वी कैन से इसकी अवेलेबिलिटी डोनेशन के लिए क्या है, कम है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? दिस कैन डोनेट इजीली, यानी इसमें इसका जो कॉन्जुगेशन है वो स्टिल अभी भी मेंटेन रह जाता है। So this structure is maintaining its conjugation. The structure is, this structure is maintaining its conjugation. What about this one? जब हमने ये वाला बना लिया यहाँ पर, so what would have happened here? So in this case again I am just drawing the same thing like this one. ये वाला हमारे पास एक conjugation में है, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इसमें, I am just taking this one. ये वाला जो दूसरा हमारे पास ऑर्बिटल होगा वो कुछ इस तरह का आएगा, like this and like this one. So effectively what we get is ये वाला पाई बॉन्ड हमने ऐसे बना दिया, और जो दूसरा वाला था वो हमने ऐसे बना लिया है, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। इसमें कौन डोनेट कर रहा है? यहाँ पर जब हमने डोनेशन दिखाया यहाँ से, सो वी कैन सी ये पाई बॉन्ड डोनेट हो रहा है यहाँ पर। जब ये वाला डोनेट हो रहा है, सो एज ए रिजल्ट व्हाट इज देयर, यहाँ पर बन क्या जाएगा, यहाँ से ये वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला तो एज इट इज रह गया, और जो हमारे पास ये वाला हमने लिया था यहाँ से, सो दिस इज हियर ओनली, ये ऐसे का ऐसे ही है, ये वाला भी ऐसे ही है, दोनों में जो पाई बॉन्ड है जो लगा हुआ है वो ऑलरेडी है यहाँ पर। एंड दिस देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज अगेन वी कैन से, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है जो कि ऐसे रह जाएगा। तो इन दिस केस जो यहाँ पर पहले कॉन्जुगेशन था, यहाँ से यहाँ तक जो ये कॉन्जुगेशन था कुछ इस तरह से, ये वाला ऐसे जिसके हम कॉन्जुगेशन की बात कर रहे थे, इस तरह से ये पूरा पूरा कॉन्जुगेटेड था यहाँ पर। दिस कॉन्जुगेशन इज लॉस्ट हियर, ये जो कॉन्जुगेशन है यहाँ पे खत्म हो गया, सो कॉन्जुगेशन इज लॉस्ट, conjugation is lost, and therefore we can say due to this loss in conjugation this is supposed to be more stable, इसलिए हमारा ये ज्यादा स्टेबल है। एंड therefore जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये वाला मेजर होगा, और जो दूसरा वाला था वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी माइनर। सो दिस वन इज योर मेजर, ये मेजर है और ये वाला हमारा माइनर बनेगा। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू what we have explained here. So we already have seen यहाँ पर जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे डी वाला कर चुके थे हम लोग। हाँ, जैसे डी वाले में देख लिया था हम लोगों ने कि ये सेकेंड वाला मेजर था, बिकॉज पी ऑर्बिटल जो था यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में दिखाई दे रहा था। सिमिलरली थर्ड ई इज अगेन सिंपलर है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन आई से एफ वाला देखते हैं विच इज कॉल्ड क्यूमुलिन, क्यूमुलेटेड एल्कीन है। जब क्यूमुलेटेड एल्कीन होता है, सो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग द फीचर दैट ये दोनों जो हमारे पास जब इवन नंबर्ड होता है, सो दैट आर प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर प्लेन, एंड सो वी कैन प्रेजेंट इट इन दिस वे। सी डबल बॉन्ड सी है, यानी पहला पी ऑर्बिटल मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, दूसरा यहाँ पर ये वाला सी है, फिर यहाँ पर एक और सी है, सो वी हैव गॉट दीज, ये ऐसे हो गया। फिर हमारे पास अब इसके बाद जो एक ऑर्बिटल था वो वाला मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे है, फिर यहाँ पर भी एक ऐसे होगा, इसमें एक पाई बॉन्ड है। अच्छा, यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड था ना, इसमें जस्ट हमारे पास एक ही डबल बॉन्ड है, सो दिस हैज टू बी
यहाँ पे नहीं होगा, only one double bond, sp2 hybridized है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, यानी only one pi bond is there and therefore we must make it like this। इसलिए हमें इसको ऐसे ही बनाना होगा। अच्छा, और जब यहाँ पर C की बात आएगी तो दिस C must be like this, कुछ ऐसे ये होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे हो गया, और ये वाला जो हमारे पास ये वाला था, इसमें ये पाई बॉन्ड ऐसे होगा। एंड सो इफेक्टिवली वी कैन से इन दिस केस ये दोनों जो होंगे, ये वाला हमारा इस प्लेन में चला जाएगा, ये H और H है यहाँ पर, और इस वाले केस के लिए हमने यहाँ पर ये वाला P और P लगा दिया। सो इफेक्टिवली व्हाट वी कैन से कि these two are basically perpendicular plane में ये दोनों पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब मुझे इसमें H प्लस को मैंने जोड़ना है यहाँ पर। सो व्हेन यू टेक दिस H प्लस टू बी अटैच्ड टू इट, जब H प्लस को हमने जोड़ना है तो वही दोनों इक्वेशंस हमें चेक करना है। दोनों इक्वेशंस चेक करना मतलब ये वाला हो गया कि एक बार मैंने यहाँ पर लगा दिया और दूसरी बार मैंने यहाँ पे लगा दिया। सो व्हेन यू अटैच टू दिस वन, सो वी हैव टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। जब दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ से, सो दीस टू स्ट्रक्चर्स वुड बी लाइक दिस वन। यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह का, यहाँ से हमने ये C का C ही लिखा। लेट्स टेक इट, पहले येलो वाला ड्रॉ कर लूँ सारा। सो फ्रॉम दैट वी कैन सी हियर ये C है, ये भी C है हमारा, ये भी C है, और ये H है, और ये H है, और हमारे पास नहीं है कोई। अच्छा, इसमें P वाला जो होगा वो इंटैक्ट रह गया यहाँ पर। सो दिस विल रिमेन एज इट वाज, ये वाला ऐसे का ऐसे रह गया। नाउ दिस इज, अब बाकी मैं पिंक कलर वाला यदि मैं ले लूँ, सो यू विल हैव दिस वन, ये H एज इट इज है, ये वाला H एज इट इज रह गया। अब यहाँ से देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटाइन बना दिया, ये H को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। जो आपने इसमें H को यहाँ पे जोड़ दिया तो हमारे पास कार्बोकेटाइन आ गया। तो ये जो कार्बोकेटाइन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, सो दिस कार्बोकेटाइन मस्ट बी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर प्लेन। बच्चे इसी चीज को हमें अप्रिशिएट करना है, यहाँ पर प्लस चार्ज इस वाले प्लेन में है। अब जरा देखो कि क्या ये और ये येलो वाला और ये वाला कैसा प्लेन है, दोनों का सेम है, डिफरेंट है? These two are present in perpendicular plane. So these two are present in perpendicular plane. Perpendicular plane है, therefore no chance of conjugation का कोई सवाल ही नहीं होता है। So no conjugation in this case. No conjugation. But on the other hand, यदि हमने दूसरे वाले का ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? So let's have a look at that again. We can draw it in this way. यहाँ से देखें हम लोग इसमें, तो ये वाला C, again I can say this is C, ये वाला C और ये H और ये H। Now we can do it like this again। हमने यहाँ पर ये वाला ऐसे ही लिखना है इसको, ये इस पे कोई फर्क पड़ा नहीं है। Now what is there? अब इसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, पिंक वाला कलर ले लेना है यहाँ पर, and then H and H is here, ये वाला H और H आ गया। अब यहाँ से देखो कि जब मैंने इसको डोनेट करा दिया यहाँ पर, तो अब जो बनेगा हमारे पास वो कैसा बन जाएगा, ये वाला चला गया, यानी यहाँ पर एक H जुड़ेगा, यहाँ पर ये H आ गया, और ये जो P ऑर्बिटल है हमारे पास वो कार्बोकेटाइन वो यहाँ पे बन गया। ठीक, सो वी हैव दिस वन। सो अगेन यहाँ पर भी कोई कॉन्जुगेशन कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ पर भी सवाल नहीं है कॉन्जुगेशन का, यहाँ भी नहीं है। लेकिन अब इन दोनों की हम लोग यदि बात करें तो दोनों में यदि ओवरऑल इफेक्टिवली आप देखें यहाँ पर, तो कॉन्जुगेशन दोनों में कुछ भी नहीं है, तो कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर एज सच है नहीं। सो नो कॉन्जुगेशन हियर अगेन, नो कॉन्जुगेशन, तो उससे स्टेबलाइज हो नहीं रहा। तो फिर बचा हुआ क्या रह गया? देन अदर थिंग व्हाट वी कैन सी इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यदि मैं इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करूं तो यहाँ पर सिर्फ एक है, ये वाला है, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास? इसमें हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड बन जा रहे हैं। सो वी कैन से 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड ड्यू टू व्हिच दिस इज मोर स्टेबल। सो वी कैन से सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना रखा है वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। देयरफॉर वी कैन से आउट ऑफ दीज टू this is more stable and so this is major, or we can say this is, ये हमारा major है, major more stable। सर अगर आंसर ठीक हो और लॉजिक गलत है तो वो गलत है? minor, this one would be minor, ये हमारा क्या होगा, minor होगा, less stable है इसलिए। so effectively इससे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जब भी कोई पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करेंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, दैट विल सी
in the next class. ठीक, hope this is clear and hope you have enjoyed. और इसमें आपने ये देखा होगा कि ये वाला जो हमारे पास था मेजर और माइनर में डिसाइड किया है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर जो हमने पी ऑर्बिटल डायग्राम को बना करके आपको दिखाया है उससे. एंड सो वी कैन सी हियर कि कॉन्जुगेशन दोनों में से कहीं भी नहीं था. यहाँ पर फिर हमने यहाँ डिसाइड किया कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है एंड सो वी हैव डिसाइडेड इट लाइक दैट. चलो, so